Good morning, sir. Morning, Nirvik. Morning, sir. Hi, guys. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Very sir. good morning. Good morning, sir. Morning, sir. Morning. Morning, sir. Morning. Okay. Can we have the videos on so that we can start the discussion? Begin the discussion. Okay. Can somebody quickly recap what we discussed about pricing in the last class? Few factors, few things, pointers. What all did we discuss? Come on, anybody. Recap. So firstly, we discussed about price skimming, price penetration, Mm-hmm. and then we discussed about elasticity Price and elasticity. price Mm-hmm. elasticity. Mm-hmm. And we did Price some skimming. Mm-hmm. numerical problems on that. Numerical problems on elasticity. Fair enough. Yes, sir. Anything else? Somebody can do a bit more structuring around what Sudhanshu said. Sudhanshu mentioned price In the skimming. previous class, we also came to know that price reduction is not always good for the product or the company. It is not like that Good the price nahi. cut Good nahi. That price elasticity is not always high not for. all higher sale. It doesn't guarantee higher sale, sir. So you told that lowering the price is always not good. Lowering the price is not always good. Not very Okay. strategy for Price selling. is immediate influencer. It is not It's a always immediate a best influencer. Ashish. sir. It is not always a best strategy for selling or Not always a representing. best Like strategy. like sir, when brand image is like brand image is made like it's a cheapest product, then Hmm. It can work against the brand. It can work Yes, against. yes, sir. sir. Yes, sir. It Uh, will You also get mention that into- this is the only fee which generates revenue. It is the only fee which generates revenue. Okay, so very good, and I'm glad that all of you remember at least something or the other from the last session. I'm quickly try to recap what we said. We said there are few key differentiators about pricing as a marketing mix variable. So one, it is the only marketing mix variable. So it is easy to change. Okay, remember it is easy to change because all you have to do is change a number in the ERP system or in an Excel file. कहीं पे एक number बदलना है. So it is easy to change. And the impact on the demand is High, almost very high or Very very high or immediate or certain. Okay, high or immediate or certain. Okay, so because it is easy to change और उसका demand पे impact immediate मिल जाता है, so the tendency is to change it in the price. change the price. Okay, but as Pratyush also told in the last class, and we said, and some of you Sudhanshu mentioned right now, and Avik also mentioned that it is not the only solution. It is not always the best solution. Okay, क्योंकि कई रीजन है. एक तो ब्रांड इमेज पे फर्क पड़ सकता है, and it might not work in your favor. इलास्टिसिटी अगर लो है, तो दाम गिराकर भी क्या नहीं होगा. Demand increase Demand ज्यादा नहीं होगा. डिमांड नहीं बढ़ेगी. प्लस इट कैन हार्म योर ब्रांड इमेज, जो हमने नैनो के केस में देखा. तो ये सब हमने कुछ पॉइंटर हमने देखे थे तो याद रखने के लिए, और मैं हमेशा कहता हूं ये चीज याद रखना. फिर हमने कहा कि yeah, so we looked at actually 3 associations of price. I'll just share my screen, and this is the summary of what we have discussed. Okay, of our discussion in the last class. Can you see my screen? Okay. So first was that we need to look at cost. Okay.
even if I am a premium brand, if I am a classic cigarette or an Apple phone or let's say Rolls Royce, do I need to know my costing or not? Do I need to know my costing or not? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Right. Yes, sir. जरूरी है कि मुझे अपना कॉस्ट पता हो, लेकिन इन सर्टेन कैटेगरीज और सर्टेन ब्रांड्स कॉस्ट और प्राइस का एसोसिएशन स्ट्रांग होता है, एंड इन सर्टेन कैटेगरीज और सर्टेन ब्रांड्स कॉस्ट और प्राइस का एसोसिएशन वीक होता है. ठीक है. प्राइसिंग इज नॉट प्राइमरली डिटरमाइंड बाय कॉस्टिंग. एग्जांपल ऑफ ब्रांड और कैटेगरी जहां प्राइसिंग और कॉस्टिंग के बीच में एसोसिएशन ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, वीक होगा. हमने कुछ एग्जांपल भी डिस्कस किया था. कोई भी प्रीमियम ब्रांड सर. मोस्टली दी प्रीमियम ब्रांड्स. करेक्ट निर्वाण. ओके, सो वी डिस्कस दिस एग्जांपल कि कल को अगर आईफोन 14 का कॉस्ट अगर आईफोन 13 से कम भी होता है, और ये पॉसिबल है, स्टिल विल द आईफोन 14 प्राइसिंग बी लेस देन आईफोन 13? No, sir. No, sir. It will not happen. So, which means the association between association between cost and price in certain brands like who said that just now mentioned Mercedes हाँ, कि वो प्रीमियम कैटेगरीज वगैरह में वीक होगा. ओके, सर्टेन कैटेगरी सर्टेन ब्रांड्स में वीक होगा. लेकिन इफ यू आर एन इकोनॉमी ब्रांड, इफ यू आर अ वॉलमार्ट, इफ यू आर अ बिग बाजार, then the association between your cost, even if you're Reliance JioMart, the association between costing and price will be the association relationship will be strong. Okay, जहां तुम्हारा कॉस्ट कम हुआ और तुम कम करने की कोशिश करोगे, हर मोमेंट पे हर रोज कम करने की कोशिश करोगे, तुम प्राइस को भी कम करोगे या करने की टेंडेंसी होगी. रिलायंस जियो हुआ ऐसा. प्राइस हमने डिस्कस किया. अगेन प्रत्युष ने बोला, अभी कुछ 2-3 लोगों ने बोला कि अविक ने बोला और few other people mentioned कि हमेशा लोएस्ट नहीं रहना. सुधांशु ने बोला लोएस्ट नहीं रहना है, मगर कॉस्ट हमेशा लोएस्ट रहना है. Low रखना. लोएस्ट रहना है. अनिर्बान कह रहा है मिनिमाइज करना है. ठीक है, कॉस्ट हमेशा मिनिमाइज करना है. फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दोनों होते हैं, हम थोड़ा बहुत देखेंगे आज. ठीक है. The other thing is to look at the impact of my pricing with respect to whom? Competitor. So the second जो हमने पिछली बार बात करी थी, there are categories where my pricing influences competitor pricing, and competitor pricing strongly influences My pricing. my price. Categories that we discussed जहां पर ये इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग होता है. Telecom industry. Telecom industry. ठीक है, एयरलाइन इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री. और क्या देखा था हमने? वो कौन? So substitute goods. हाँ, like So tea, coffee. सर. टी कॉफी में आई एम नॉट सो श्योर उतना कॉम्पिटिटिव प्राइस पे इन्फ्लुएंस तो होता है, बट सब्स्टिट्यूट की बात नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ पर सेम कैटेगरी में ब्रांड की बात करें. हाँ मौसमी, आप कुछ कहना चाहती हैं? Sir, पेट्रोल. बहुत बढ़िया मौसमी. पेट्रोल का बहुत एग्जांपल हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में कि कॉम्पिटिटर ने जहां प्राइस ड्रॉप किए, आई कांट चार्ज इवन 1 रुपया हायर देन, राइट? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. ये कब होता है मौसमी या फिर अदर्स, एनीबॉडी एल्स? जब व्हेन द कंज्यूमर डजंट Differentiate Doesn't have the substitute. quality. differentiate between the brands. Okay, the category behaves more like a commodity than like a branded commodity, a branded category. जो प्योर कमोडिटीज होती हैं, प्योर कमोडिटी मतलब क्या नहीं एग्जिस्ट करता है? प्योर कमोडिटी मतलब क्या नहीं एग्जिस्ट करता है? डिफरेंशिएशन. ब्रांड नहीं एग्जिस्ट करता है. जो प्योर कमोडिटी हुआ तुम्हारा रॉ आयरन, क्रूड ऑयल, ये सब प्योर कमोडिटी है या नहीं है? ये सब प्योर Yes, sir. Yes, sir. वहां पर ओनली ऑगमेंटेशन, ओनली डिफरेंशिएशन फ्रॉम द सेलर साइड इज Price. प्राइस. ओके, सो इन सब केसेस में कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग बहुत मैटर करती है. ठीक है. पेट्रोल का एग्जांपल मौसमी ने काफी अच्छा दिया, वहां पर भी होता है. फ्यू अदर कैटेगरीज आल्सो. मोबाइल सभी जगह होता है. देखो, कॉम्पिटिटर ब्रांड का प्राइस सब जगह इन्फ्लुएंस करता है. अगेन इट्स अ मैटर ऑफ डिग्री. पेट्रोल में वो डिग्री बहुत, जो मौसमी कह रही है, पेट्रोल में वो डिग्री बहुत बहुत ज्यादा है. ठीक है. लेकिन अगर मैं लग्जरी गुड्स में जाता हूं, ओके, प्रीमियम वॉच में जाता हूं, राइट,
या सन ग्लासेस में जाता हूं, वहां पर वो डिग्री कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग मेरी प्राइसिंग को Less. उतना influence नहीं करती। Because elasticity less. होमोजेनिटी हेट्रोजेनिटी का भी खेल है, होमोजेनिटी हेट्रोजेनिटी का भी खेल है। कहां पर कॉम्पिटिटर प्राइस इन्फ्लुएंस ज्यादा करेगा, होमोजीनियस में या हेट्रोजीनियस में? Heterogeneous. Heterogeneous. Homogeneous. होमोजीनियस में, बिकॉज होमोजीनियस में कंज्यूमर क्या नहीं करेगी, You can differentiate. डिफरेंशिएट नहीं करेगी। होमोजीनियस कैटेगरीज में कॉम्पिटिटर प्राइसेस विल इन्फ्लुएंस मी मोर। हेट्रोजीनियस में चश्मा, घड़ी, आई कैन गेट अवे बाय प्राइसिंग एनीथिंग। इसीलिए तो मैं हेट्रोजीनियस करना चाहता हूं ना अपनी कैटेगरी को। कॉफी में मैं सिर्फ कॉफी बना के नहीं बेचना है मुझे, सर्विस का कंपोनेंट डालने से मैंने क्या किया, सर्विस का कंपोनेंट डालने से मैंने क्या बढ़ा दिया, Homogeneous. Price बढ़ा दिए. क्या बढ़ा दिया, होमोजेनिटी या हेट्रोजेनिटी? हेट्रोजेनिटी बढ़ा दिया। और जहां मैंने हेट्रोजेनिटी बढ़ा दिया, माय पावर टू Increase the price. Increase the increase the price when the price increases. increases. ओके, तो याद रखना है ये सब, ठीक है। थर्ड वाला था वो कंज्यूमर बेस्ड प्राइसिंग, वेयर माय प्राइसिंग इज नॉट डिटरमाइंड बाय कॉस्ट, माय प्राइसिंग इज नॉट डिटरमाइंड बाय कॉम्पिटिटर, बट माय प्राइसिंग इज डिटरमाइंड बाय हाउ मच इज द कंज्यूमर Willing to pay. Willing to pay. willing to pay. ठीक है, दिस इज द बेस्ट सिचुएशन टू बी इन। सो एग्जांपल हमने, तो इसको परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग कहते हैं। एग्जांपल, लग्जरी गुड्स, नो, आईफोन की प्राइसिंग कैसे होती है? अगर कंज्यूमर ₹1,00,000 देना चाहता है तो हम ₹1,00,000 चार्ज करेंगे, कंज्यूमर किडनी देना चाहता है हम किडनी चार्ज करेंगे, लीवर देना चाहता है लीवर चार्ज करेंगे। मेरे को अपनी कॉस्टिंग से कोई मतलब नहीं है, मेरे को कॉम्पिटिटर ब्रांड की प्राइसिंग से मतलब नहीं है। द ओनली पर्सन whom I am concerned about pricing is my consumer। वो क्या देने को तैयार है हम वो ले लेंगे, ठीक है। ओके, नाउ वी विल डू अ फ्यू कैलकुलेशंस। ओके, सो पहला होता है कॉस्ट एज अ रेफरेंस या बेसिकली इनपुट एज अ रेफरेंस, ठीक है, जो सबसे कॉमन लेमैन तरीका है प्राइस करने का, कि मैं अपना कॉस्ट देखूंगा या अपना इनपुट पे कितना खर्चा आया वो देखूंगा, और उस पे आई विल पुट अ व्हाट इज इट कॉल्ड, एक परसेंटेज उसके ऊपर डाल देते हैं कॉस्ट के ऊपर, मार्कअप। वेरी गुड अभिलाष, थैंक यू फॉर दैट, वेरी गुड। बेसिकली मैं अपनी प्रॉफिट को, जब मैं प्राइस कर रहा हूं, अपने प्रॉफिट को 3 चीजों से कंपेयर कर सकता हूं। अपने प्रॉफिट को, रिटर्न को 3 चीजों से कंपेयर कर सकता हूं। एक में कर सकता हूं कॉस्ट प्राइस से, जो अभिलाष ने बोला, और उस रेशियो को क्या बोलते हैं, जब मैं अपने प्रॉफिट को कॉस्टिंग से मेजर करता हूं, कंपेयर करता हूं, उसको बोलते हैं अभी अभिलाष ने बोला ना, उस रेशियो को हम बोलते हैं मार्कअप परसेंटेज, उसको हम बोलते हैं मार्कअप परसेंटेज। दूसरा, मैं अपने प्रॉफिट को मेजर कर सकता हूं एज कंपेयर टू नॉट द कॉस्ट प्राइस बट द other price, not the costing but the margin, selling price। प्रॉफिट को जब हम सेलिंग प्राइस से कंपेयर करते हैं, एक कंपैरेटिव में रेशियो निकालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं व्हाट परसेंटेज, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। ग्रॉस प्रॉफिट तो कुछ मतलब एक टाइप का प्रॉफिट होता है, जब हम मार्जिन परसेंटेज, उसको हम बोलते हैं मार्जिन परसेंटेज, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मार्जिन परसेंटेज। ठीक है, इंडिया में या फिर कई जगह इंडस्ट्री में प्रॉफिट को कॉस्ट के साथ कंपेयर करते हैं और फिर भी मार्जिन परसेंटेज बोलते हैं। गलत है वो, बाय डेफिनेशन गलत है वो। जब हम बोलेंगे मार्जिन परसेंटेज, योर प्रॉफिट शुड ओनली बी कंपेयर्ड टू सेलिंग। बहुत ही बेसिक चीज है, याद रखना, 2 साल तक मैं सिखाता रहूंगा, गलती करते रहोगे तुम लोग। मार्जिन परसेंटेज में प्रॉफिट को हम कंपेयर करते हैं सेलिंग प्राइस के साथ। और तीसरा होता है जहां पर हम रिटर्न या प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं इन्वेस्टमेंट के साथ। वेरी गुड,
जिसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और आरओआई। तीनों कैलकुलेशन करेंगे तो उसके बाद शायद थोड़ा चमकेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा चमक रहा है। मुझे ये सवाल करके बताओ, ठीक है? जल्दी करेंगे, पेन पेपर बाहर रखो, खूब सारा काम है। $45. कितना है? $45. 45, ठीक है। क्या इक्वेशन है, कौन बताएगा? अविक, अनिर्बान, क्या Yes, इक्वेशन है? sir. Sir, it is Sir, cost 63 by price 140 into 100. markup. हाँ, होल्ड ऑन, हाँ, Sir, cost Cost price plus plus markup percentage is equal to price, selling price. cost price plus 40% of cost price is equal to selling price, which is $63. X plus 0.4x is equal to $63. अभिलाष, अविक, अनिर्बान को चैट बॉक्स में लिखो जल्दी से। इक्वेशन, एक इक्वेशन बनाओ और उसके पहले इक्वेशन स्टेप्स देना, पहले इक्वेशन बनाना और उसके बाद फिर उसका सॉल्व करना। गौतमी, चमक रहा है आपको? Yes, sir. चमक रहा है आपको? Yes, sir. खूब भालो। दिव्य ज्योति, सॉल्व हुआ? इक्वेशन समझ में आ गई? जी सर। ठीक, गुड। Rajeshwari, are you able to do it? Yes, sir. So cost अगर x है, अभिलाष ने जो लिखा है, cost अगर x है प्लस मार्कअप परसेंटेज ऑफ कॉस्ट कितना है? 40%. तो x plus 40% of x is equal to in this case 63. x plus 40% of x is equal to 63. उसके बाद उसको सॉल्व कर लो मिस नेहा मुखर्जी। Yes, sir. Solving. गुड। हितेश्री हो गया आपसे? मिस परिदा? शिवानी हो गया आपसे? शिवानी स्वरूप, ठीक है, हो गया सबसे? कैन यू मूव अहेड? यहां पर हमने प्रॉफिट को 40% ऑफ व्हाट लिया? इस इक्वेशन में हमने 40% ऑफ व्हाट लिया? कॉस्ट प्राइस लिया। क्यों 40% ऑफ कॉस्ट प्राइस लिया? बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन वाज Markup price. काफी छोटी सी चीज है बट हम काफी गलती करते हैं इससे, ठीक है? वो गलती नहीं करती है। ओके, लेट मी जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी शो यू अनदर क्वेश्चन। बिल्कुल क्लास 6 है ये सब, क्लास 5 है एक्चुअली। करते रहेंगे लेकिन आगे बढ़ते रहेंगे और धीरे धीरे बिल्ड करेंगे इस पे। ये वाला करो, सिमिलर ही है, थोड़ा सा और बिल्ड किया है उसको। अर्पण गोईदार, आर यू देयर? Sir, is the answer 67.6? It is. Okay. Anuradha, your screen is visible but you are not visible. कुमार आदित्य, हो रहा है तुमसे?
Yes, sir. करो। अनुराधा जेना, Yes, sir. आप नहीं दिख रही हैं? Just a second. Which is fine, मतलब but as long as you are there, I hope you're solving. मिस जीना, आप ना तो दिखाई देती हैं ना सुनाई देती हैं। दीपशिखा, are you able to do it? Sir, it is 67.6. It is 67.6. One of you please write it. So क्या होगा अप्रोच बता दो कोई, पहले क्या करेंगे? पहले क्या निकालेंगे? Cost निकालेंगे, sir. टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? Fixed cost 1000 plus 50 to 500. हाँ करेक्ट, लिखो टोटल कॉस्ट निकालो। 50 प्लस 1000 प्लस 50 into 500 लिखो, टोटल कॉस्ट लिखो, स्टेप्स करो। हाँ अब एक ही लाइन में लिख दिया तुमने। मैंने 30% ऐड करना भूल गया सर, गलत हो गया। आंसर सही है बट 30% नहीं लिखा है। टोटल कॉस्ट कितना हुआ? टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 1000 plus 50 into 500 which is how much? 26,000. अगर टोटल कॉस्ट $26,000 है तो व्हाट कैन आई कैलकुलेट? Markup price. हाँ तो टोटल में भी मार्कअप लगा सकते हो या फिर कॉस्ट प्राइस पर यूनिट निकाल सकते हो। दैट्स आल्सो ओके। So that's a easy method because that will be 2 and total cost will be 52 per into 1.3, then it is 67.6. हाँ करेक्ट। सो डिपेंड्स कि किसको क्या कन्वीनियंट लगता है। तो आई प्रेफर डूइंग इट ऑन अ पर यूनिट बेसिस, बट अगर टोटल कॉस्ट पे करना है तो भी वो फाइन है। सो कॉस्ट प्राइस पर यूनिट अगर निकालना है, हाँ अभिलाष ने इक्वेशन लिखी है, तो टोटल कॉस्ट कितना आया? Okay, stop typing in chat box. I will write it then. Total cost is equal to 26,000 plus 500 into 50, which is equal to $26,000. ठीक है? तो इससे क्या? $26,000 आ गया, तो कॉस्ट प्राइस पर यूनिट कितना हो गया? 26,000 डिवाइडेड बाय 500 है ना? 52 की यूनिट क्या है भाई? Dollars. डॉलर पर गैजेट। और इसके बाद तो मार्कअप इजी है, तो 52, so selling price is equal to 52 plus 52 into कितना है मार्कअप? 30%, which is equal to $67.6 per day। अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। Is it clear? बहुत बेसिक सवाल है क्या? Very basic. Done? Everybody, Simran? Yes, sir. Anshu? Ayush? हो गया? Yes, sir. Ayush Samal, are you able to do it? Sir. पक्का? ठीक है। I'm assuming everybody has done it. The other way of comparing was, as I said, is margin. Markdown on sales भी कभी use करते हैं, but I don't want to use that term. Just focus on the word margin percentage. Okay. Now solve it. Remember, margin percentage दिया हुआ है. Miss Anuradha, are you there?
You are still not visible, neither audible. Yes, I'm here, but I don't know what is the problem. I'm not visible. Which is fine. As long as you are there and you're solving, it's okay. Yes, sir. Avinash Mahapatra, are you able to do it? Yes, sir. Good. No, Bhaskar, no. It's not 19.2. This is exactly the mistake which you have made, which we have been talking about. Look at the word margin, Bhaskar. Look at the word margin. Margin percentage है. Margin percentage. Margin percentage मतलब margin को किससे compare करना है? Sale price. Selling price है. Margin percentage मतलब margin को 20 rupees per unit. हाँ 20 rupees per unit. 20 rupees per unit. Correct. 20 rupees per unit. Yes, sir. 20. ठीक है. भास्कर तुमने कॉस्ट प्राइस से कंपेयर किया है परसेंटेज को. ज्योति प्रकाश, आर यू एबल टू डू इट? Yes, sir. Good. Shantanu, you seem lost. Are you able to do it? Yes, sir. Okay, try. ये बहुत बेसिक हैं. ना तो मिड सेम ऐसा होगा, ना केस सॉल्विंग ऐसा होगा, ना क्विज ऐसा होगा. बट पहले ही करो. Write in the chat box those who have done it. पहले क्या निकालेंगे? Total cost. टोटल कॉस्ट कितना निकलेगा? 8 lakh. 8 lakhs. 3 lakhs plus 50,000 into 10. 3 lakhs plus 50,000 into 10. तो 8 lakh is total cost. Yes, sir. तो टोटल कॉस्ट आ गया. कॉस्ट प्राइस पर यूनिट आ जाएगा. No, not 12.8, Khushbu. Not 12.8. 8 lakh divided by 50,000. 50,000, which is 16. Okay, so total cost is equal to 3 lakh plus 50,000 into कितना है? 50,000 into 10 10. is equal to 8 lakh. ठीक है. कॉस्ट प्राइस पर यूनिट हो गया 8 lakh divided by 50,000 50,000. is equal to rupees 16 per unit. Per unit. रुपीज 16 पर यूनिट. ठीक है. अब इक्वेशन क्या होगी? प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो अगर लेट सेलिंग प्राइस भी इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो प्रॉफिट को दो तरीके से निकाल सकते हैं. प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्स माइनस 16. Profit is equal to x minus 16, and profit is also equal to 20% of Else 20% of X. ये वाला जो इक्वेशन है x minus 16 is equal to 20% of x, इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी.
यहां पर हमने प्रॉफिट को किसके रेफरेंस में मेजर किया है? दैट इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग। प्रॉफिट को हम किस परसेंटेज को हम, मार्जिन जब है तो परसेंटेज को हम किसके रेफरेंस में कंपेयर कर रहे हैं? Selling price. सेलिंग प्राइस के रेफरेंस में मेजर कर रहे हैं। 20% ऑफ एक्स किया है। अगर ये मार्कअप होता 20%, तो हम क्या करते? x माइनस 16 इज इक्वल टू 20% ऑफ Cost. 20% ऑफ 16 करते, 20% ऑफ 16 करते। लेकिन क्योंकि मार्कअप नहीं मार्जिन दिया हुआ है, तो हमने प्रॉफिट को क्या किया है? 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, जो कि x। भास्कर, तुम्हें समझ में आया 19.2 क्यों नहीं होगा और तुमने क्या गलती करी थी? रोनित, हुआ तुमसे? Yes, sir. वेरी नाइस। देवस्मिता, हुआ आपसे? Yes, sir. ओके, गुड। रितु स्वाई, हुआ आपसे? Yes, sir. गुड। हाँ, gross margin here is 4 rupees per unit, na? 20 minus 16. Gross margin is 4 rupees per unit. 20 minus 16. 16 है ना? हाँ, हाँ, इसलिए। Come again. Can I stop sharing? Has everybody noted? Has everybody noted? Has everybody noted? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, पूछो, क्या पूछ रहे हो ग्रॉस मार्जिन को लेके? पूछो। हाँ, हाँ, 20% प्रॉफिट। हाँ, नहीं है ना ऐसा, नहीं है ना ऐसा। तुम यहां पर मार्जिन परसेंटेज दिया है और मार्जिन परसेंटेज की डेफिनेशन ये होती है कि योर ग्रॉस मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस। जब तुम 120% ऑफ 16 कर रहे हो, तुम ये कह रहे हो कि 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस, विच इज नॉट राइट बाय डेफिनेशन। मार्जिन परसेंटेज की डेफिनेशन ये है कि वो मतलब मार्जिन इन रुपी टर्म्स divided by selling price, divided by selling price. That's the whole point. मार्जिन की मार्जिन परसेंटेज की डेफिनेशन ये है कि मार्जिन डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। सर, तो इसका फाइनल आंसर 20 पर यूनिट हुआ ना? हाँ, हाँ, 20 रुपीज पर यूनिट हुआ। ओके, थैंक यू। ठीक है, 20% पे 20% मार्जिन पे निकला 4/20 हो गया ना, 4 रुपीज बाय 20 रुपीज 20% हो गया ना। अगर इसी इक्वेशन में, इसी बिजनेस में मैं तुमसे कहता हूं कि मार्कअप परसेंटेज अब कितना होगा, तब मार्कअप कैसे निकालेंगे? 4/16। तो मार्कअप हो गया तुम्हारा 25%। इसी इक्वेशन में मार्कअप हो गया 25%। Am I clear? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? यस सर। हाँ। और तीसरा रेफरेंस क्या था? तीसरा रेफरेंस क्या था? इन्वेस्टमेंट के अराउंड। ठीक है, ओके। बिफोर आई शेयर द न्यूमेरिकल, मुझे कोई ये समझाओ कि इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट में क्या अंतर है? अभी तो कॉस्ट वगैरह पे निकाला ना हमने, इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट में क्या अंतर है? कौन बताएगा? इन्वेस्टमेंट क्या है पहले ये बताओ। अरे मेरे फाइनेंस सर, कॉस्ट इज इन्वेस्टमेंट क्या करता है? Fixed cost. No. It is the fixed cost. And Not always. No. Some of the fixed cost is investment. Not all fixed cost is investment. That's absolutely wrong. Absolutely wrong. Sir, cost is actually the
price that is paid, and investment is where you expect some returns or interest that is that would increase your Correct, Siddhant. When you do an investment, you expect return. Cost is your expenses incurred to generate that return. ठीक है? Investment, when you make an investment, the ownership of that capital stays with whom? With investor. With the person who is making the investment. Okay, Shubhadeep? Good. I like it. Okay? Let's do an example. हाँ, Ashish, बोलो. Sir, can I say that like when cost is the when we expend in our product, or investment when we invest in other product like other business to get some. नहीं. अरे इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में तो ज्यादा होता है. अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. ठीक है, इससे शायद तुम्हें डिफरेंस समझ में आ जाएगा. फिक्स डिपॉजिट समझ में आता है ना सबको? फिक्स डिपॉजिट. ठीक है. मान लो मैंने 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट में एफडी में 1 लाख रुपए डाला. ठीक है. एफडी कितना रिटर्न जनरेट करता है? 6% मान लेते हैं. 6% मान लेते हैं. तो मैंने 1 लाख रुपए एफडी में डाला. 1 साल के बाद कितना रिटर्न जनरेट होगा? 6,000 rupees. Okay. So the bank will give me 1,06,000 rupees, but this is gross return. ठीक है. इस 6,000 रुपए को लेने के लिए मुझे इसमें से कुछ पैसा देना पड़ेगा. तो टैक्स में मान लो मैंने कुछ पैसा दिया. ठीक है. गवर्नमेंट विल टेक सम मनी इन टैक्स. बैंक का प्रोसेसिंग चार्ज कुछ हो गया, जो भी है, मतलब. ओके, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है. मान लो ये टैक्स और प्रोसेसिंग फीस वगैरह मिला के 1,000 रुपए खर्च हो गया. ठीक है. तो नेट रिटर्न कितना हुआ मेरा? 5,000 rupees. Okay. Now tell me, what is the return, net return, what is the cost, and what is the investment? 6,000 is cost and 5,000 in No, not 6,000 is not cost. 1,000 is cost. 1,000 is your cost. It is the expense. It is the expense that you incurred to earn some return. वो जो खर्चा हुआ रिटर्न कमाने के लिए, वो जो खर्चा हुआ मेरा, that is my expense. 1,000 रुपए, टैक्स, प्रोसेसिंग फीस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. नेट रिटर्न ऑलरेडी बता दिया है. नेट रिटर्न 5,000. 5,000. Okay. And what is my investment here? 1 lakh. 1 lakh rupees is my investment. Why is 1 lakh rupees the investment? Because it generated 5,000 rupees as return. It generated a return of 5,000 rupees. पूरे टाइम उस 1 लाख रुपए कैपिटल की ओनरशिप किसकी थी? आपकी. मेरी रही वो ओनरशिप. ठीक है. एंड इन्वेस्टमेंट जो होता है, दैट इज द कैपिटल विच गेट्स ब्लॉक्ड इन द बिजनेस. वो जो पैसा मेरा धंधे में फंसा हुआ है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो जो मेरा पैसा धंधे में फंसा हुआ है और जिसके कारण से रिटर्न जनरेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. ओके. और कैपिटल इन्वेस्टमेंट. ओके. मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या इन्वेस्टमेंट होता है, क्या क्या कहां पैसा फंसा होता है मेरा, ब्लॉक्ड होता है? मशीनरीज, लैंड, बिल्डिंग, ये सब होता है फिक्स्ड असेट, which is one form of investment. Your fixed assets are your investments because they are generating. Your fixed assets are supposedly generating revenue. हाँ, returns, revenue, profits, whatever. ठीक है. Returns, revenues, profit. ठीक है. और क्या इन्वेस्टमेंट होता है? The other investment. The variable expenses, that is raw material. What is it called? हाँ, ये raw material है. What investment? Variable expenses. logistic cost. Inventory. कॉस्ट कैसे इन्वेस्टमेंट हो गया? लॉजिस्टिक कॉस्ट तो खर्चा है आशीष. तो खर्चा है. Manufacturing cost. अरे मैडम, नेहा मैडम, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो सभी है. सभी तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है. व्हाट इज द अदर इन्वेस्टमेंट? ये जो इन्वेंटरी का हल्ला कर रहे थे, व्हाट इन्वेस्टमेंट इज इट कॉल्ड? वेरिएबल इन्वेस्टमेंट नहीं. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. शॉर्ट टर्म, यस.
बट दिस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एक टर्म होता है। Revenue invest. लिक्विड बना लो तुम लोग इक्वेशन ऑफ थ्योरी। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट रोटेट होता रहता है। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट किस किस फॉर्म में होता है? एक तो होता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री 3 तरह की होती है। क्या क्या इन्वेंट्री होती है 3 तरह की? Raw material, finished goods, रॉ मटेरियल, work in वर्क इन progress. प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड इन्वेंट्री में पैसा फंसा होता है। और कहाँ पैसा फंसा होता है? जो रोटेट होता रहता है पैसा। डेटर्स के पास फंसा होता है। बहुत बढ़िया अभी चैटर्जी, जो उधारी है मार्केट में वो एक पैसा फंसा होता है, वो वर्किंग कैपिटल होता है, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, कैश इन हैंड वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। ओके, सो दीस आर सम ऑफ दी सो लिक्विड इन्वेस्टमेंट जो तुम लोग बोल रहे थे, दीस आर ऑल वर्किंग कैपिटल। एम आई क्लियर डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट? ये जो ग्रॉस मार्जिन हल्ला कर रहे थे भास्कर, ग्रॉस मार्जिन में इन्वेस्टमेंट में नहीं आते, इन्वेस्टमेंट नहीं देखते हैं, केवल सेलिंग प्राइस, रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखते हैं। ओके, हम लोग बहुत स्लो चल रहे हैं। करो, तो मैंने कहा था कि इनपुट में 3 चीजों से प्रॉफिट को कंपेयर कर सकते हैं। पहला हमने किया कॉस्ट प्राइस से, उसको हमने बोला मार्कअप। फिर हमने किया सेलिंग प्राइस से, उसको हमने बोला मार्जिन परसेंटेज। ओके, परसेंटेज, हाँ, कॉस्ट प्राइस के साथ किया तो मार्कअप परसेंटेज, सेलिंग प्राइस के साथ कंपेयर किया तो मार्जिन परसेंटेज, और इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर किया तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। 3 चीजों से कंपेयर होता है, 3 चीजों से कंपेयर होता है। 2 मिनट में करो। uh, 23.4. कितना? 23.4. नहीं 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 नहीं, सर 26 कितना? 26 26 नहीं, 22। हाँ अभिलाष 22। हाँ, किसने किया 22? हाँ लिखो, हाँ लिखो श्रेया, अभिलाष स्टेप्स के साथ। पहले क्या निकालेंगे? पहले क्या निकालेंगे? Fixed cost per unit. हाँ, पर यूनिट लेवल पे कर सकते हो या टोटल कॉस्ट के हिसाब से भी कर सकते टोटल को लिख लेंगे 8 लाख होगा। हो। हाँ, टोटल निकाल लो, टोटल लेवल पे करोगी जिससे तो थोड़ा आसान पड़ेगा मुझे लगता है, मतलब पर यूनिट बेसिस पे भी कर सकते हो, पर मुझे लगता है टोटल, हाँ टोटल कॉस्ट कितना आएगा? 8 लाख। टोटल कॉस्ट कितना है? 8 लाख सर। 8 lakhs. So 8 लाख। ओके, टोटल कॉस्ट 8 लाख है। और यहाँ पर प्रॉफिट को अगर हम इन्वेस्टमेंट के साथ मेजर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो 30% ऑफ व्हाट? 30% ऑफ व्हाट? 10 लाख 1 lakh. इन्वेस्टमेंट। 10 lakhs. 10 लाख। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ प्रॉफिट ऑफ हाउ मेनी रुपीज? 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपीज। प्रॉफिट मुझे चाहिए 3 लाख रुपए का, और मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है? 8 लाख। टोटल कॉस्ट 8 लाख। 8 लाख। 8 लाख। तो मुझे टोटल रेवेन्यू कितना चाहिए? 8 प्लस 3। रिटर्न मैंने निकाला इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन ऐड में कॉस्ट प्राइस पे ही करूंगा, क्योंकि प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस। रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। हाँ, रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। वो इक्वेशन नहीं चेंज होगी, वो इक्वेशन सेम रहेगी।
बट इतना अंतर है कि मैं अपने प्रॉफिट को कंपेयर किससे कर रहा हूं. इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग इट टू कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, आई एम कंपेयरिंग और मेजरिंग माई प्रॉफिट with investment. Am I making any sense? Yes, sir. Apart from Avik Chatterjee. Explain a Yes, bit. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या friends? Sir, once more, sir. Please explain a bit that how that Total cost आ गया? Total cost आ गया? श्रेया ने लिखा हुआ है. Total cost आया कि नहीं आया? वो तो बेसिक है. Yes, sir, 8 lakh. ठीक है. लेकिन जब हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मेजर लेते हैं तो हम अपने रिटर्न को कॉस्ट के साथ मेजर नहीं कर रहे हैं. 30% मुझे ये बता रहा है कि माय रिटर्न शुड बी 30% ऑफ व्हाट, नॉट ऑफ कॉस्ट प्राइस, नॉट ऑफ सेलिंग प्राइस, बट माय रिटर्न शुड बी 30% ऑफ द Total investment. टोटल इन्वेस्टमेंट. और टोटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है कि मेरा धंधे में कितना पैसा फंसा रहता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. 10 लाख, 10 लाख रुपया मेरा फंसा रहता है. वो फिक्स्ड एसेट में हो सकता है, वो वर्किंग कैपिटल में हो सकता है, सब मिला के मेरा धंधे में 10 लाख रुपया फंसा रहता है. इसका मतलब मुझे रिटर्न कितना चाहिए? 30%. 30%, which is how much rupees? 3 lakhs. 3 लाख रुपीज चाहिए. ठीक है. और अगर 3 लाख रुपीज मुझे रिटर्न चाहिए और कॉस्टिंग मेरी 8 लाख रुपीज है, तो मेरा रेवेन्यू मुझे कितना चाहिए? मेरा रेवेन्यू कितना चाहिए? 8 plus 3. Revenue will be always be equal to cost price plus profit. Yes. वो इक्वेशन नहीं चेंज हो सकती ना. तो रेवेन्यू 11 लाख चाहिए और 11 लाख कितने यूनिट्स पे चाहिए मुझे? 50,000. 50,000. तो 11 लाख रेवेन्यू अगर 50,000 यूनिट्स पे चाहिए तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना हो जाएगा? 11 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, which is equal to rupees 22 per unit. प्रिंस ठीक है? ठीक है सर. ठीक है. अब मुझे ये बताओ, अगर यही इक्वेशन है, मुझे ये बताओ मार्कअप परसेंटेज कितना है और मार्जिन परसेंटेज कितना है इसी बिजनेस का. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 30% है, मार्कअप परसेंटेज कितना होगा? सर मार्कअप होगा 37.5. कितना होगा? न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है? सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है 16. न्यूमरेटर है Sir, 3/8 होगा सर. हाँ 3/8 और 6/16. मतलब यूनिट बेसिस पे करोगे तो 6 रुपए बटे 16 रुपए 6 रुपीज है. या फिर टोटल लेवल पे करोगे तो 3 लाख इज द रिटर्न. मार्कअप में किससे कंपेयर करते हैं? मार्कअप में किससे? कॉस्ट में. तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख. 3 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख कितना हुआ? 37.5. ये मार्कअप परसेंटेज हो गया. एक ही धंधा है, उसी धंधे के हम 3 रेशियो निकाल रहे हैं. और मार्जिन परसेंटेज कितना है इस धंधे का? 27.27. 7.27. 6 डिवाइडेड बाय 11. 22. 6 डिवाइडेड बाय 22 या फिर 3 लाख डिवाइडेड बाय 11 लाख. आइदर 3 लाख डिवाइडेड बाय 11 लाख या 6, अगर यूनिट बेसिस पे करेंगे तो 6 रुपीज डिवाइडेड बाय 22. एम आई क्लियर नाउ? मार्कअप, मार्जिन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तीनों चीजों को एक ही धंधे में कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो इट डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट को तुम किससे कंपेयर कर रहे हो. ये डिपेंड करता है केवल अपने प्रॉफिट या रिटर्न को तुम किससे कंपेयर करो. एम आई क्लियर? बहुत ही बेसिक चीज है, हम बार करेंगे अगले 2 साल तक. सुनिए. So in 3 cases where selling cost or we consider that selling cost and we change our margin or investment. Come again. What's your So question? basically we are constantly we consider the selling price in 3 cases, na? So that's I'm trying to say that. So in this question, मतलब जो तुम्हारा रेवेन्यू है या सेलिंग प्राइस है, उसको तुम किसके कंपेयर कर, किस चीज को प्राइमरी मेजर करना चाहते हो अपना प्रॉफिट निकालने के लिए. ठीक है. तो जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया, तुम तीनों रेशियो एक साथ नहीं चेंज कर सकते ना आशीष.
तो तुमको ये देखना है कि किस रेशियो पे फोकस करना है, ठीक है। हर धंधा अलग अलग रेशियो पे फोकस करता है। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया उसमें हमारा जो गाइडिंग रेशियो था वो था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 30%। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को गाइड मान के जो 30% है कि मुझे ये इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, मुझे मार्कअप से मतलब नहीं है, मार्जिन से मतलब नहीं, ठीक है, मार्कअप परसेंटेज से मतलब नहीं, मार्जिन परसेंटेज से मतलब। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का परसेंट के हिसाब से मैंने अपना सेलिंग प्राइस निकाल लिया। अब मेरा सेलिंग प्राइस फिक्स हो गया है, मेरा प्रॉफिट फिक्स हो गया है, मेरा कॉस्ट फिक्स हो गया है, ठीक है। तो क्योंकि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट और प्रॉफिट फिक्स हो गया है, आई कैन जस्ट कैलकुलेट एंड सी कि मार्कअप परसेंटेज कितना आ रहा है और मार्जिन परसेंटेज कितना आ रहा है। बट व्हाट वाज माय गाइडिंग रेशियो इस केस में? माय गाइडिंग रेशियो वाज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। Shudip is fine. Is this okay? Any question? Yes, no, पता नहीं, मतलब नहीं, सोच चुके हैं। Yes. प्रैक्टिस करो, बाद में मतलब यही सब पूछूंगा मैं, ठीक है। और अभी अगली क्लास में केस करेंगे और केस में तो और जान ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें और बिल्ड करेंगे। ओके, वन प्राइस इज बेस्ड। सो बेसिकली तीनों जो मेजर हैं वो इनपुट बेस्ड हैं, चाहे तुम कॉस्ट के बेसिस पे करो, सेलिंग प्राइस के बेसिस पे करो, या फिर इन्वेस्टमेंट के बेसिस करो, इनपुट बेस्ड हैं। द सेकंड वे ऑफ मेजरिंग योर प्राइस वाज टू कंपेयर इट टू whom? Compare it to competitor. competitor. That is second pricing method. Third pricing method is to check with whom? On the base of consumer. On the base of consumer. Very good, Aishwarya. ठीक है, कि कंज्यूमर कितना विलिंग है पे करने के लिए, उसका परसीव वैल्यू क्या है। Whose perceived value? Goods. Product. Consumer's perceived value of my offering, ठीक है, of my offering. तो ये रेफरेंस जो है वो कई तरीकों से आता है, कुछ मैंने स्लाइड में दिया हुआ है, स्लाइड खोल के रखो अगर नहीं खोल के रखी है तो। पहला है फेयर प्राइस। ओके, फेयर प्राइस मतलब कि कंज्यूमर बिलीव्स कि हाँ इसका इतना दाम होना चाहिए या दिस इज जस्टिफाइड। जैसे मान लो चिप्स में एक परसीव्ड वैल्यू क्या होती है फेयर प्राइस की? 10 rupees. परसीव्ड वैल्यू फेयर प्राइस है कि 10 रुपए इज द फेयर प्राइस, ठीक है। साबुन में एक 10 रुपए का फेयर प्राइस है, बिस्किट में एक 10 रुपए का फेयर प्राइस है, ठीक है। तो एक फेयर प्राइस होता है। एक परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग होता है टिपिकल वैल्यू। टिपिकल मतलब एज ए कंज्यूमर तुम्हें लगता है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट तो इतने में ही मिलता है, ठीक है, वो एक प्राइसिंग रेफरेंस बन जाता है कंज्यूमर का। कंज्यूमर माइट बिलीव इट इज अनफेयर, बट उसको पता है कि टिपिकल प्राइस इतना ही होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल के केस में व्हाट इज द टिपिकल प्राइस द कंज्यूमर बिलीव्स कि एप्पल फोन आएगा तो टिपिकली इतना प्राइस होगा, Like 1,50,000. 1 lakh plus 1 lakh plus or 1,50,000. Okay, that's a typical price. Consumer might believe it is an unfair price or might believe it's a fair price, but it's a typical price. ठीक है, आईफोन है तो 1 लाख रुपए का है, 1 प्लस है तो 50,000 रुपीज का है, एक टिपिकल प्राइस का रेफरेंस होता है। कुछ और प्राइस रेफरेंसेस होते हैं। लास्ट प्राइस पेड कहां पर हम ये रेफरेंस यूज करते हैं? पिछली बार दिया था So groceries, ग्रोसरी में। वेरी गुड अदिति, क्यों ग्रोसरी में हम ये रेफरेंस यूज करते हैं? लेकिन उसका प्राइस फ्लक्चुएट होता है कभी-कभी। हाँ, प्राइस फ्लक्चुएट करता है कभी-कभी, मतलब महीने टू महीने वैरी करता है। अगर मैं पिछला रेफरेंस यूज कर रहा हूँ या तो फ्लक्चुएशन ज्यादा है या कम है? Price I'm a regular buyer. मैं खरीदती हूँ। Very good. Frequency of purchase is high. तो फिर मेरा लास्ट प्राइस पेड का रेफरेंस बहुत कॉमन हो जाता है। तो इसीलिए जो आदिति कह रही है ग्रोसरी, वेजिटेबल, so lot of these products. हाँ शारदा, कॉस्मेटिक्स, करेक्ट। लास्ट प्राइस पेड बिकम्स योर रेफरेंस पॉइंट। कहां पर नहीं होता है लास्ट प्राइस पेड रेफरेंस? कहां पर नहीं होता है? जहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम है सर। हाँ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। जब आप टीवी खरीदने जाते हैं तब आप नहीं कहते हैं कि 10 साल पहले मैंने ये प्रोडक्ट इस दाम पे खरीदा था। जहां पे फ्लक्चुएशंस बहुत हाई होते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉम्पिटिटर का प्राइसिंग चेक करते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टेलीकॉम, पेट्रोल एक्सेट्रा। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, जहां पर वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है, डिस्काउंटेड एक्सेट्रा,
प्राइस क्वालिटी इन्फ्रेंसेस वगैरह हम बात कर चुके हैं। यहाँ पर प्राइस का इन्फ्रेंस, क्वालिटी का इन्फ्रेंस किससे आता है? क्वालिटी का इन्फ्रेंस प्राइसिंग से आता है, प्राइस पे आता है, हाँ। प्राइस से आता है, ठीक है। प्राइस एंडिंग होता है 999, which means what is the reference you are giving to the consumer? That the product is priced Less than 100 rupees or less than 1000. This is called price ending. 1999, price is less than 2000. Okay, that's a reference you are giving the consumer. Upper bound price, consumer will not pay. Consumer will not pay More than that price. more than that price. Very good, Ronit. And lower bound price, which is the more interesting one, Or by will not say less than not that less price. than that price. will Will not not purchase. consider your product because it is A good priced product. lesser than a number. Because quality inference negative हो चुका है, ठीक है। कोई common है अपर बाउंड का एग्जांपल देंगे सर, अपर बाउंड का क्या 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 अभी अपर बाउंड प्राइसिंग का एग्जांपल सर। अपर बाउंड प्राइसिंग का एग्जांपल तो अभी को कोई भी प्रोडक्ट है तो कैसे यूज किया? हाँ सुनिए बोलो। Sir, petrol consumer will not means buy petrol in upper than that price. If it is more than that adjoining shop selling that petrol. Fair enough, that's a good example. That अगर BPCL में एक certain price है 80 rupees or whatever 90 rupees, I will not pay more than this. Okay. Necessary goods में upper bound price थोड़ा issue है, हालांकि सुनिए लग्जरी नहीं बट शॉपिंग गुड्स वगैरह में, शॉपिंग गुड्स में बहुत कॉमन होता है upper bound price। मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, I will not pay more than 180. Okay, I will only pay 1. It's an upper bound. Okay. प्राइसिंग मैकेनिज्म्स होते हैं बहुत सारे। स्लाइड खोलो, अगर नहीं खोल रखी है तो प्राइसिंग मैकेनिज्म्स होते हैं बहुत सारे। Can we say MRP is upper bound? नो, तो MRP is not, you are, हाँ बोलो प्रियांश बोलो। We can say it a lower bound price, right? Because consumers will not pay more than that. No. It is neither lower nor upper bound price. What you are saying, जब तुम किसी अपने प्रोडक्ट का MRP कुछ रख रहे हो ना सुधांशु, you are assuming, you are hypothesizing कि वो जो MRP है that is in between the consumer's upper bound and lower bound price. The floor price. हाँ, तो जब तुमने OnePlus लॉन्च किया 40,000 पे सुधांशु, ठीक है, तो तुम ये मान रहे हो कि जो तुम्हारा टारगेट कंज्यूमर है उसका अपर बाउंड प्राइस 40,000 के ऊपर है और लोअर बाउंड प्राइस 40,000 से नीचे है। That your 40,000 MRP is in between the upper bound and lower bound price difference for your target consumer. For your target consumer. ठीक है, तो उस हिसाब से तो MRP डिसाइड करें। ओके, प्राइसिंग मैकेनिज्म्स, रिबेट्स, डिस्काउंट्स वगैरह, that's one common pricing mechanism. डिस्काउंट्स मिलते हैं ना, काफी कॉमन है या नहीं है? Yes or no? Yes sir. ठीक है। हाँ बोलो। सर बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि कस्टमर इज नॉट willing to pay more than MRP because it is a maximum retail price. So by putting an MRP, you are capping the upper bound price of that consumer. You are capping the upper bound price of the consumer. Say any example where customer is willing to pay more than MRP. क्या? Sir, any example where customer is willing to pay more than MRP? Sir, वो तो लीगली नहीं है ना। हाँ अर्पण, वो तो लीगली नहीं है। जैसे इलीगली होता है, वाटर बॉटल्स पे 15 रुपए का बेस में बिकता है, तो इलीगल In restaurants हाँ, so वाटर बॉटल का एग्जांपल है अर्पण का। हाँ ऐश्वर्या, In train journey also I find या फिर फेयर में चिप्स का पैकेट 20 रुपीस होता है, they sell it in 25. Correct. So which is not legal technically, ठीक है सुधांशु, that's not legal technically, but because of certain value offering, जैसे मिनरल वाटर बोल रहा है अर्पण की, क्योंकि वो ठंडा कर रहे हैं इसलिए उसके 2 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं, या ऐश्वर्या ट्रेन में चिप्स का एग्जांपल दे रही हैं क्योंकि you are getting it at a place where it is difficult to get and you don't have options. So consumer is still not willing to pay, but it is lack of choice. Okay, demand supply. Sir,
जी। गुड्स के केस में जब बिडिंग करते हैं तब तो वो लीगल होता है ना वो। हाँ, लेकिन वहां करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट शिवानी, कि जब ऑक्शन होता है द प्राइसेस बिकम वेरी हाई, बट वहां पर एमआरपी का कंसेप्ट नहीं है। एमआरपी का कंसेप्ट B2C प्रोडक्ट्स में होता है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में होता है, और हाँ, सो जनरली मतलब इट्स नॉट एप्लीकेबल ऑक्शन वगैरह में शिवानी, जनरली इट्स नॉट एप्लीकेबल टू ऑक्शन। सर ऑक्शन में वहाँ पे सप्लाई कम होता है और डिमांड बहुत ज्यादा होता है। करेक्ट, ऑक्शन तभी होता है व्हेन सप्लाई इज लेस देन डिमांड, तभी ऑक्शन कर पाओगे, वरना ऑक्शन कर भी नहीं पाओगे, ऑक्शन इज आल्सो प्राइसिंग मेथड बाय द वे, ऑक्शन इज आल्सो प्राइसिंग मेथड। आई डोंट नो इफ वी विल हैव टाइम, I don't think I'll get into auctioning and all, क्योंकि बहुत स्लो चल रहे हैं, बट ऑक्शन भी 3-4 तरीके के होते हैं। ऑक्शन होता है, रिवर्स ऑक्शन होता है, डच ऑक्शन होता है, 3 और 4 ऑक्शन मेथड्स। ऑक्शनिंग अपने आप में एक टॉपिक है। ओके, डीलर इंसेंटिव्स क्या होते हैं? अनदर प्राइसिंग मेथड। Where we give incentives to dealers for selling their products. हाँ, I incentivize dealer. Who is the dealer? The customer. हाँ, मतलब who is dealer? Dealer is the retailer. Retailer, yes sir. Retailer, ठीक है, who sells to the consumer. So a lot of time I pay some money to dealer. Okay, let's quickly do this. Loyalty cards. Loyalty cards कहाँ पर होते हैं? In categories में. It is available in the Prime, जैसे कि Prime member will be like, if you will be extra rated, like if you're buying some amount of products, you will get 5% off. कहाँ पर देखा है सर आपने? hold on. खुशबू देन शारदा देन गौतमी, हाँ कहाँ पे देखा है? फ्लिपकार्ट अमेज़न में। शारदा आपने कहाँ देखा है? सर बिग बाजार, फिर शॉपिंग बिग बाजार में। शारदा आपने कहाँ देखा है? स्टारबक्स, बिग बाजार सर। बिग बाजार। गौतमी आपने कहाँ देखा है लॉयल्टी कार्ड? Yes sir, grocery shop, Reliance. Grocery shops में। When will loyalty cards make sense? What are you incentivizing? Regular customer. Frequency of purchases. Hi. एग्जाम्पल आप देख लीजिए, सारे एग्जाम्पल आप देख लीजिए। लॉयल्टी कार्ड्स वर्क व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज इज हाई। व्हाट आर यू इंसेंटिवाइजिंग? You're incentivizing Price. what are you incentivizing? Frequency of the Purchase. Repeat purchase is what you are incentivizing. Car automobile में loyalty card doesn't make sense. Have you seen a lot of loyalty cards in car showrooms? No sir. No, sir. because In hotels also. But ड्यूरेबल गुड है, आप 10 साल बाद आएंगे। अगर ऑटोमोबाइल में लॉयल्टी कार्ड बनाना है तो किस चीज पे बनेगा? सर सर्विस में, सर्विसिंग पे बनेगा, कार परचेज पे नहीं बनेगा। ठीक है, but Hero provides the loyalty card. So like if you have previously a Hero bike, then they give 5,000 discount in the new bike. That's not exactly a loyalty card. But again, you are incentivizing repeat purchase. Okay. Same with Maruti Suzuki, the true value. In Maruti That's not repeat purchase. That's resale. ठीक है? Okay. Premium pricing क्या होती है, कौन बताएगा या मुझे पूछना पड़ेगा? सौरभ, विद्यार्थी हो? Yes sir. प्रीमियम प्राइसिंग क्या होती है? सर जैसे हम किसी चीज का ज्यादा प्राइस पे करते हैं। ज्यादा प्राइस नहीं। सौरभ, प्रीमियम प्राइसिंग Providing free services. Yash? It's a paid options. No, it's not auction. So is it something like if we take any premium service, like I've seen hotels, like when we book banquets for marriage and all, then they say that okay, we can give 1 or 2 rooms for free.
like something No, like that. no. When you're charging Price scheming in premium buying. Hold on. Shreya, and then Prince. Shreya. So if we are subscribing to Canva, the designing tool, we are subscribing it free. But for availing the pro services, we have to pay service charges. Very good. Very good. Sir, another example of Play Store, like in all mobile phone, like it's free for Play Store, but when we install the like things like all the different app, like we have to pay something. Correct. Canva, Play Store वगैरह का एग्जांपल सही है. प्रोडक्ट फ्री है, बेसिक प्रोडक्ट फ्री है, कुछ एड ऑन फीचर्स, स्पेसिफिक फीचर्स कैनवा का एग्जांपल दिया श्रेया ने, उनको यूज करने के लिए पे करना पड़ेगा. दिस इज कॉल्ड प्रीमियम प्राइसिंग. बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे सर ऐसे तो Amazon Prime Disney Plus आप नाराज मत होइए, वो है Amazon Prime का एग्जांपल है, सही है वो एग्जांपल. So, can I say that the iCloud is the premium? एक करके आशीष फिर अर्पण. हाँ आशीष. Sir, iCloud in iPhone, that is the premium price also. एक सर्टेन स्टोरेज फ्री है, उसके बियॉन्ड अगर स्टोरेज चाहिए तो पे करना पड़ेगा. Yes sir. ठीक है. हाँ वही बोल रहा था कि क्लाउड स्टोरेज इन गूगल, क्लाउड स्टोरेज करेक्ट है, फिर पैसे चार्ज करता है. एंटीवायरस ऐसे बिकता है. Spotify प्रीमियम, करेक्ट ऋषभ. Spotify इज अ वेरी गुड एग्जांपल कि बिना ऐड वाला अगर चाहिए तो पे करना पड़ेगा और विद ऐड वाला फ्री है. Bing, डिजिटल प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं. हाँ अलीबा बोलिए. सर लिंक्डइन में सर जो होता है सर प्रीमियम देते हैं. करेक्ट, लिंक्डइन है, बहुत सारे ऐसे हैं. So YouTube originals, YouTube Premium is an example of that. YouTube Premium is an example of that. कि बेसिक YouTube फ्री है, YouTube Premium के लिए पे करना पड़ेगा. फ्री टू फी, उसमें OTT प्लेटफॉर्म्स, Amazon Prime की बात करेंगे गौतमी, सारे OTT प्लेटफॉर्म्स, मोस्ट OTT प्लेटफॉर्म्स, नॉट सारे बट हॉटस्टार ऐसे करता है. सर्टेन कंटेंट इज फ्री, सर्टेन कंटेंट के लिए पे करना पड़ेगा. हॉटस्टार ऐसा करता है. फ्री टू फी में क्या होता है सर? जियो जैसे कि पहले फ्री में दिया and then started pricing cost. करेक्ट. Tinder Gold, correct Rishabh, I was waiting for that. Premium pricing, Tinder Gold is a very good example. Okay, I was waiting for that. Thank you Rishabh for that. बिल्कुल avid user हो, regular user. Gold Prime member Platinum, बहुत है बढ़िया. Free to fee, PlayStation Plus, correct Piyush, PlayStation Plus. Free actually काफी गेम्स में होता है, गेमिंग में होता है Piyush, प्रीमियम वाला काफी, कि अगर तुम्हें कोई लेवल अनलॉक करना है या कुछ और फीचर अनलॉक करना है तो पे करना पड़ता है. प्रीमियम गेमिंग में बहुत कॉमन है. फ्री टू फी, सर्टेन टाइम पीरियड इट इज फ्री एंड देन It is like sir, जियो का एग्जांपल दिया ऐश्वर्या ने. जियो का काफी अच्छा एग्जांपल था. और क्या लिखा? हाँ शुभदीप. Sir, Amazon Prime 3 months free. 3 months free. Correct. Amazon Prime 3 months free. Netflix 1 month subscription free. Again डिजिटल प्रोडक्ट्स में बहुत कॉमन होता है. ठीक है. इन इलेक्ट्रॉनिक एक सेकंड. luxurious good can be provide premium services. लग्जरी में कहाँ पे फ्री देते हैं कि इतने ड्यूरेशन के लिए फ्री है फिर चार्ज करें? I was asking the example. I don't think लग्जरी वाले फ्री देना चाहेंगे और कुछ लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए आई एम नॉट श्योर इफ दे विल चार्ज यू फॉर. लग्जरी वाले फ्री देंगे चार्ज करना भी थोड़ा मुश्किल है मौसमी. अगर आपको कुछ एग्जांपल याद आता है तो आप शेयर करिएगा. Can you say that iTunes, the iPhone gives 1 month subscription, free subscription? करेक्ट. ओके, मुझे ये बताओ, ये फ्री टू फी और प्रीमियम प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? करना क्या चाहते? Acquire customers, generating trials is the biggest objective. ठीक है, acquire customers and generate trials is the biggest objective. Okay, good Rishabh. Premium, rent, fair fee, wage, commission, auction, ये सब पता है तुमको, मैं उसमें बात नहीं करूंगा. Free pricing. Okay, auction पे कुछ बात कर ली है तुम लोगों ने. Anyways, you have a fair idea. I'll not get into details, but I think अभिलाष या किसी ने तो बहुत अच्छा बोला कि ऑक्शनिंग कब काम करती है? When supply is less than
Demand. फ्री हाँ भास्कर बोलो। Test drive service में you're not getting it for free. You're not getting it for free. You're not getting it for free. That's a trial. You're not owning it for a certain period of time. ठीक है? अगर भास्कर, अगर कोई कार वाले ऐसा लेके आते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, वो कहते हैं कि 1 महीने रखो, यूज करो, अगर पसंद ना आए तो वापस कर दो, तो ये कौन सी प्राइसिंग होगी? That will be free to fee. कार में प्रीमियम प्राइसिंग होती है, कैसे होती है? कार रेंटल्स होते हैं उनका, वो कार रेंटल्स क्या? हाँ, कार रेंटल्स क्या? फ्री टू फ्री मतलब कुछ समय के लिए आप उसको घूम के आओ, देन यू कैन रिटर्न देम। अगर सर्टेन टाइम पीरियड इज फ्री, शुभजी, कि पहले 3 घंटे के लिए हम चार्ज नहीं करेंगे। हाँ सर, वो रहता है, मतलब कुछ आई थिंक 1-2 घंटे का कुछ रहता है। अगर 2 घंटे के लिए फ्री है, यूज करो और वापस दे जाओ, पैसे नहीं लेंगे, देन इट इज फ्री। तो जैसे सर ओला में सर होता है, फर्स्ट ट्रिप के लिए फ्री होता था पहले ऐप में। हाँ, ओला में फर्स्ट ट्रिप फ्री इज फ्री टू फ्री। दैट्स अ गुड एग्जांपल। पहली 5 राइड्स फ्री हैं, दैट्स अ गुड एग्जांपल। सर, you are saying that the free to free service that we are testing the service, our service, right, sir? Generating trials. We are generating trials. Sir, we can also we can say that acquiring the customer also for Jio Fiber, where Jio service, we are giving the free for 1 year. Then we make them habit. So then nowadays we can't live without Jio, right? So it also acquiring the customer also. कस्टमर एक्विजिशन तो है ही ना, ऑब्जेक्टिव ऋषभ ने बोला और हमने तो अग्री किया, कस्टमर एक्विजिशन है। तो ये जो फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, सब कस्टमर एक्विजिशन और वो हैबिट क्रिएट करने का ही तो ऑब्जेक्टिव है। तो ट्रायल तो इसीलिए तो जनरेट कराते हो ना, ट्रायल तो जनरेट इसीलिए कराते हो कि वो हैबिट हो जाए। ठीक है? टेलीकॉम और ई कॉमर्स में ये अंतर है कि जब जियो ने किया, उसके सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा थे, क्योंकि which cost is high in telecom as compared to an e-commerce? Which cost is high? Investment. No, Alok. अगर ले लिया मैंने नंबर, what will I most likely not do? Change. What is it? Retention is Change the number. Change the number. So which means which cost is high? Which cost is high? Switching cost is high. So once the consumer has taken that number connection, most likely the consumer is not going to लेकिन ये लॉजिक ओला, उबर, फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे लागू नहीं होता है, क्योंकि वहां पर स्विचिंग कॉस्ट क्या है? बहुत लो है, बहुत लो है। आज अमेज़न पे 30% ऑफ है तो मैंने अमेज़न पे कर लिया, कल फ्लिपकार्ट पे 30% ऑफ होगा तो मैं फ्लिपकार्ट से खरीदूंगा, तो वहां पर स्विचिंग कॉस्ट लो है। ठीक है, इसलिए वहां पर कस्टमर एक्विजिशन तो नहीं हो रहा है, जनरली ट्रायल जनरेशन हो रहा है। बट जियो के केस में वो प्रॉपर कस्टमर एक्विजिशन था, जो ऋषभ बोल रहा है। ठीक है, टिंडर के केस में वो कस्टमर एक्विजिशन ही है। Yes, switching cost is because switching cost is high or low? I don't know. You will tell me. Okay. Free pricing. Product is free. Quick. Yes, sir. That free sampling is what the new FMCG when the new product comes. No, sampling is not a pricing method. Sampling is a marketing promotion, Priyanshu. Sampling is a marketing promotion. ठीक है? और अगर तुम उसको कंसिडर करना चाहते हो तो फ्री टू फी में कर सकते हो। When I'm saying free pricing, मतलब the product is free always. No, Rishabh, buy one get one free is not free pricing. उसमें एक प्रोडक्ट के लिए पैसा देना पड़ रहा है। The whole product is free for always. Come on. The whole product is free and always. Amazon Prime. Okay, some digital products, so Amazon, etc. Sir, with Jio connection broadband, they are giving like wireless phone. So wireless.
हाँ बट साथ में दे रहे हैं ना, आई एम सेइंग कि कुछ साथ बात में नहीं लेना है, फ्री है बस, साथ बात में कुछ नहीं लेना है, फ्री है बस। WhatsApp. हाँ हेलो Sir, MX Player, we can say MX WhatsApp. Player. व्हाट्सएप व्हाट्सएप इज फ्री ना, व्हाट्सएप इज फ्री ना, जो आलोक बोल रहा है व्हाट्सएप इज फ्री, फेसबुक इज फ्री। So then all the apps without ads, all the apps without ads are free. नो नो नॉट विदाउट एड्स नहीं फ्री है, विदाउट एड्स नहीं फ्री है, So विद एड्स फ्री है। क्या बोल रहा है? sir, WhatsApp में तो ads नहीं चलता ना, तो revenue तो generate नहीं करते, जितना app download होता है उतना ही सर। तो collect the data through WhatsApp. WhatsApp is an exception because WhatsApp has still not monetized itself. Exactly. WhatsApp has not monetized, at least not in the consumer space. They have monetized themselves in business space, not in consumer space yet. But if you look at the other apps, all your Insta and Facebook, Snapchat. what is being monetized? What is being monetized? Customer कौन मिल रहा है? हाँ? The customer choice और data. Who is the product? Whose data on it? हम You are the product. You are being sold. Social network में बताया ना, बताया नहीं बताया कि when the product is free, you are the then you are the product. याद रखना, okay? याद रखना. So all those free product pricing, okay? We'll talk about two more things. One is product mix pricing, okay? When you are about to price a product, should you, so let's say you're going to launch a product, okay? Should you consider only the product which you are launching, or should you look at the entire portfolio? Should you look at the entire portfolio? Entire portfolio. Why should you consider the price of your product on the portfolio? क्यों ये consideration करना चाहिए? क्यों ये consideration करना चाहिए? How much one consumer is willing to pay? How much is consumer willing to pay? Yes. What is the other reason why? What will happen if you don't consider the pricing of other brands in your lineup? What will happen? Wrong pricing You will strategy. not know what the market is charging for the same. You will not know, Aliva, what? You will not know? You will not know Profit what the cannibalism market होगा is sir. charging for the same product. Real price. कैनिबलाइजेशन होगा। बहुत बढ़िया अभिलाष। एक तो कैनिबलाइजेशन की कहानी, एक कहानी तो कैनिबलाइजेशन की है, ठीक है? इफ यू डोंट प्राइस योर प्रोडक्ट कंसीडरिंग द अदर प्रोडक्ट्स इन योर पोर्टफोलियो, कैनिबलाइजेशन हो जाए, ठीक है? एक तो लॉजिक वहां पर। दूसरा है ब्रांड का, दूसरी कहानी है ब्रांड की, ठीक है? आई गिव एन एग्जांपल फ्रॉम माय कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, ओके? वी वर गोइंग टू लॉन्च क्लासिक का वेरिएंट, हम उस पे काम कर रहे थे दोस्तों। मैंने नहीं लॉन्च किया, लॉन्च बाद में हुआ, बट आई वाज वर्किंग ऑन दैट प्रोडक्ट बैक देन। इट वाज कॉल्ड क्लासिक बर्स्ट। वो कैप्सूल वाला आता है ना, कि फ्लेवर कुछ और होता है, बीड़ी पीने वाले जानते होंगे, बट इफ यू बर्स्ट दैट कैप्सूल तो सो फ्लेवर चेंज हो जाता है, या उसका मेंथॉल फ्लेवर आ जाता है ना। हाँ, सो वो सब तमाशा रहता है, ठीक है फ्रेंड्स? तो हमने कहा ये बड़ा इनोवेटिव प्रोडक्ट है, और बीड़ी में क्या ही इनोवेशन होता है, तो वही सबने कहा कि बड़ा इनोवेटिव है और ऐसा है वैसा है, दुनिया बदल देंगे ये लॉन्च करके, ऐसा वैसा। तो वी वांटेड टू पोजीशन इट एज अ प्रीमियम वेरिएंट। अगर मैं ये हल्ला कर रहा हूं कि इट इज अ प्रीमियम वेरिएंट, आई कांट प्राइस इट लेस देन other variants of classic के बाकी वेरिएंट से नीचे नहीं कर सकता ना मैं, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, हल्ला कर रहा हूँ कि प्रीमियम है, और दाम मैंने बाकी वेरिएंट से कम कर दिया तो नहीं होगा, ठीक है? तो आई विल हैव टू प्राइस इट हायर देन अदर वेरिएंट्स और एट पार विद अदर वेरिएंट्स। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ हाई कैन आई गो, ओके? ये वो वाला हाई नहीं है, ये बीड़ी वाला हाई नहीं है, मतलब ऊंचा वाला हाई। सो ब्रांड की हायरार्की होती है, ठीक है? ब्रांड की हायरार्की होती है। तो आईटीसी पोर्टफोलियो में, फॉर एग्जांपल, आईटीसी पोर्टफोलियो में द मोस्ट प्रीमियम ब्रांड इज सपोज्ड टू बी इंसिग्निया, देन देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड इंडिया किंग्स, एंड देन देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड क्लासिक। ये हायरार्की है आईटीसी पोर्टफोलियो। इफ आई नो दिस ब्रांड हायरार्की, I can't price my variant higher than which brand?
or equal to which brand? Top two brands. The top two brands. जो अगला ब्रांड है इंडिया किंग्स, मैं उसके इक्वल प्राइस नहीं कर सकता. अगर मैंने उसके इक्वल प्राइस कर दिया या उससे ज्यादा प्राइस कर दिया, तो what am I saying? What am I saying to the consumer? Telling the consumer. More premium than the top two brands. More, Classic is more premium, or more importantly, India Kings is less premium than Classic. तो जो इंडिया किंग्स का कंज्यूमर है, उसको क्या लगेगा? उसको क्या लगेगा? हाँ, क्यों पी रहा था मैं इंडिया किंग्स इतने दिनों से? I was supposed to be more premium and all that, right? So you have to maintain a hierarchy. सिगरेट के एग्जाम्पल में क्लासिक और गोल्ड फ्लेक, smokers will know this, which is supposed to be more premium between classic and gold flake kings. Classic. Classic is more premium. If you see, get your basics right. Classic is more premium, which means no variant of classic can ever be priced less than gold flake. किंग्स के नीचे नहीं हो सकता है. उस वक्त हमारा ये रूल था जब हम प्राइस बढ़ाते थे कि कभी भी गोल्ड फ्लेक किंग्स का दाम क्लासिक के किसी वेरिएंट से ऊपर नहीं जा सकता, इक्वल हो सकता है. अगर प्राइस मूवमेंट ऊपर होना है, पहले किसका होगा? क्लासिक का. ठीक है, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन द ब्रांड हायरार्की. ठीक है, तो प्रोडक्ट लाइन पूरी सोचनी पड़ती है. ऐसे ही नहीं कि कुछ भी लॉन्च कर दिया, कभी भी लॉन्च कर दिया. ठीक है. Between Dove and Lux, which soap is more premium? Dove. 100 साल से ये कहानी बनी है, 100 साल की मेहनत है, 60 साल की मेहनत है कि भाई Dove is more premium. और अचानक से कोई ब्रांड मैनेजर आएगा और बोलेगा कि नहीं, Dove का नया वेरिएंट लॉन्च करना है, वो ज्यादा बेचना है मुझे और उसका दाम हम Lux से कम रखेंगे. What are you doing to brand positioning? You are killing the brand positioning. Okay, you can't price a Dove soap less than Lux. Then the consumer is confused. उसको पता ही नहीं कि Dove क्या है और Lux क्या है. I don't know that. Okay, so ये सब बहुत ध्यान रखना पड़ता है. कैनिबलाइजेशन का अच्छी बात कही अभिलाष ने. 5-10 मिनट है हमारे पास, मतलब फिर कहानी बात करेंगे. कैनिबलाइजेशन की बात करी. थम्स अप चार्ज जब लॉन्च हुआ था, थम्स अप चार्ज का क्या ऑब्जेक्टिव था? किस कंज्यूमर को अपग्रेड करना है? यूथ. किस कंज्यूमर को अपग्रेड करना है? थम्स अप चार्ज के कंज्यूमर को अपग्रेड करना है. थम्स अप के कंज्यूमर को अपग्रेड करना है. प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग है ये पूरी, which means I can't price thumbs up charge less than thumbs up. नहीं कर सकते. एट पार भी नहीं कर सकते हैं. एट पार भी प्राइस नहीं कर सकते हैं. उन्होंने पहले थोड़ा सा ज्यादा किया था, आई डोंट नो, 1-2 रुपए ज्यादा किया था, फिर बिका नहीं, क्योंकि थम्स अप इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड्स इन द कंट्री. बिका नहीं, फिर उन्होंने एट पार किया. कंज्यूमर ने कहा घंटा हमको थम्स अप से मूव ही नहीं होना, तो उनको दुकान बंद करनी पड़ी थम्स अप चार्ज की. थम्स अप वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड. बट ये सब ध्यान रखना पड़ता है. ठीक है, ओके. ऑप्शनल, सो लेट्स कॉल प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग. पूरी लाइन चेक करो अपनी. जो मैंने क्लासिक इंडिया किंग्स का एग्जांपल दिया, डव और लक्स का एग्जांपल दिया. ऑप्शनल फीचर प्राइसिंग, इट इज लाइक प्रीमियम प्राइसिंग. ठीक, अगर ये फीचर चाहिए तो एक्स्ट्रा पे करेगी. एग्जांपल, टाटा स्काई. बहुत बढ़िया मौसमी है. टाटा स्काई में व्हाट इज द ऑप्शनल फीचर? तो आप एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा चैनल के लिए. बहुत बढ़िया एग्जांपल है. ऑटोमोबाइल सेक्टर ऑल्सो. ऑटोमोबाइल में ऋषभ भी वही बोल रहा है. ऑटोमोबाइल में क्या एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा फीचर एयरबैग्स के लिए, कलर के लिए, असिस्टेड रिवर्स सनरूफ के लिए. करेक्ट. एयरलाइंस में बहुत कॉमन है. एयरलाइंस में क्या होता है? बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास. बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास, एक्स्ट्रा फीचर के लिए पे कर रहे हो, लगेज के लिए पे कर रहे हो, फूड के लिए पे कर रहे हो. कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग, ये थोड़ा बात करते हैं. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. कैप्टिव प्रोडक्ट में हु विल टेल मी कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या होता है? वेयर यू डोंट चार्ज फॉर समथिंग एंड यू चार्ज
Miss So there Neha, are two products like Aditi, there's two a products. main. So there are two products. One is the main product, and other one is the supporting product. Like razors. If you see the example, razors are there, video games are there. बहुत These बढ़िया. are the yes. हाँ, तो रेजर का बहुत अच्छा क्लासिक एग्जांपल है. जिलेट वालों ने खेल शुरू किया था. कैप्टिव प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट वो कम दाम पे बेच देते हैं अदिति, या लोअर प्रॉफिट पे? रेजर. And the money is in they make money in Blade. the blade. It's Blades. Ronit, बोलो. Sir, can we say about printers? The cartridges are more expensive. Correct. So because printer you will sell how many times? Printer you will sell only once. And once the printer reaches the consumer's house, कहाँ खून पीते रहे? Cartridges. तो certain categories में core product जो अदिति ने और रोनित ने बोला वो कम दाम पे बेचते हैं या minimum profit पे बेचते हैं और पैसा दूसरी चीज में बनाते हैं. ठीक है. This called captive product. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो अभी मौसमी ने. हाँ ऐसे So the clean parts will be starting the less than other जो environments के लिए they take price. Can it be example of this? Ornaments में क्या? नहीं clean parts जो हम लोग जाते हैं water parks and all. The price are minimal. That is not captive product pricing. That is not captive product pricing. No. Park is not that captive product pricing. Two-part pricing. Huh? Yes, Two-part pricing. Two-part It is pricing. more for two-part pricing, correct. It's a two-part pricing where a certain portion is priced differently and that portion is priced differently. Captive product का एक अच्छा एग्जाम्पल है. मौसमी ने किसी और रेफरेंस में टाटा स्काई Tata Sky. सेटअप बॉक्स कौन सा प्रोडक्ट वो आपको बिना प्रॉफिट के दे रहे हैं? क्या चीज बिना प्रॉफिट? सेट टॉप बॉक्स. वो जो हम 1000 रुपए देते हैं उस पे कोई पैसा नहीं बनाता टाटा स्काई या नेग्लिजिबल है. एक्चुअली उनको फ्री में देना चाहिए. पता नहीं वो 1000 रुपए भी क्यों लेते हैं आपसे, वो भी नहीं लेना है. क्योंकि अगर एक बार डब्बा घुस गया घर पे पैसा कहाँ बनेगा? चैनल पैकेजेस. चैनल पे वो जो मंथली रिचार्ज होगा पैसा वहां बनेगा, खून वहां पिएंगे. ठीक है. तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कैप्टिव प्रोडक्ट का सिम कार्ड. ठीक है. आज से 15 साल पहले नया कनेक्शन देने पे, सिम कार्ड देने पे वो तुमसे चार्ज करते थे नहीं करते थे? यस सर. करते थे. वो कहते थे 1000 रुपए दो, 2000 रुपए दो, सिम कार्ड के पैसे देते थे. ठीक है. 1000 रुपए. फिर उन्होंने क्या कहा कि अच्छा ठीक है 1000 रुपए 2000 रुपए मत दो, 500 रुपए दे. ठीक है. फिर उन्होंने क्या कहा? फ्री का सिम ले लो. फिर 300 रुपए पे आए, 10 रुपए पे आए. फिर उन्होंने कहा फ्री का सिम ले लो. फिर वहां पे भी नहीं रुके सुधांशु. फिर उन्होंने कहा अच्छा फ्री पे भी मत लो, सिम कार्ड लेने के वो तुम्हें पैसे देते हैं. 100 रुपए का तुम्हें पैसे मिलते हैं ना. कहते भाई तुम सिम रख लो, हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं. वो तुम्हें पैसे देते हैं. क्यों देते हैं? जियो वालों ने वही किया ना. क्यों? क्योंकि पैसा कहाँ है? पैसा सिम में नहीं है ना. Charge. एक बार वो कनेक्शन घुस गया उसके बाद खून पीते रहेंगे. ये कैप्टिव प्रोडक्ट का बहुत अच्छा एग्जांपल है. रिलायंस वाले तो मास्टर हैं. वो 500 रुपए में जो हैंडसेट मिलता है और 1000 रुपए में जो हैंडसेट मिलता है, क्यों मिल रहा है वो 500 और 1000 रुपए में हैंडसेट? This handset only compatible with that SIM. हाँ, only with their number. और उसके बाद वो खून पीते रहेंगे ना. कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बहुत बड़ी है ना. कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बहुत बड़ी है. Is that okay? Okay. Two-part pricing. One portion of the product is priced separately and the other portion of the product is priced separately. That's called two-part. Theme part ऐश्वर्या बोल रही थी. पोस्ट पेड जो कनेक्शन होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है, वो सब एग्जाम्पल है कि अगर 500 यूनिट तक होगा तो ये प्राइस है और उसके बाद होगा तो इतना होगा. राइट. इवन ट्रेन वगैरह, ट्रेन रिजर्वेशन वगैरह भी, ट्रेन टिकट का भी वैसे ही दाम होता है. बंडलिंग कहाँ देखा है? बंडलिंग कहाँ देखा? Product bundling of products and pricing them together. Different products. Shampoo with conditioner. Shampoo with conditioner FMCG में होता है, बहुत कॉमन नहीं है बट होता है. और कहाँ? ई-कॉमर्स वाले बहुत करते हैं. With this OTT subscriptions. Very good example, Sharda. Very nice example.
क्लबिंग बंडलिंग एयरटेल वाले कर रहे हैं और बहुत सारे ओटीटी को क्लब कर रहे हैं. बहुत अच्छा एग्जांपल था, बहुत ही अच्छा. आई लव इट. So I was telling about food outlets, जैसे होता है ना हैप्पी मील एंड ऑल. बिल्कुल. टाइम्स प्राइम मेंबरशिप ऋषभ करेक्ट. ऐश्वर्या इज वेरी राइट. बंडलिंग का बहुत अच्छा कॉमन एग्जांपल है जो कॉम्बो ऑफर्स देते हैं आपको, जो मैकडॉनल्ड्स करता है और जो KFC करता है. बंडलिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? टू इंक्रीज हाँ, टू इंक्रीज कंजम्पशन. हाँ बोलो मास्टर. I was saying that जो उन लोग का ज्यादा नहीं बिकता है उसको they kind of include so that it will sell more. बहुत बढ़िया. एक इसको बोलते हैं क्रॉस सेलिंग. एक तो इसको बोलते हैं क्रॉस सेलिंग. टू बी एबल टू सेल द प्रोडक्ट्स व्हिच आर नॉट सेलिंग अ लॉट. Pankaj का very valid point. The other, I think Sharda or somebody was mentioning, to increase the consumption basket. To increase the consumption basket because you can't increase the number of consumers. मतलब वो अलग से कर रहे हैं, but existing consumers को और बेचना. Okay? तो there's a term called bill value. So bill value basically बढ़ाने की कोशिश करते हैं. लॉन्च करने पे भी करते हैं ना? क्या करने पे सुधांशु? सर इफ लाइक कोलगेट जब अपना ब्रश लॉन्च किया तो उस टाइम टूथपेस्ट के साथ ब्रश ऑफर करता है. हाँ, तो जैसे महाश्वेता कह रही थी कि या तो वो प्रोडक्ट बिकता नहीं है या प्रोडक्ट नया है और मुझे उसे एस्टैब्लिश करना है, तो बंडलिंग कैन हेल्प मी कि जो बिकने वाला प्रोडक्ट है उसके साथ मैं अपना नया लॉन्च को चिपका दूंगा. तो बंडलिंग कैन हेल्प. तो ट्रायल मतलब कंजम्पशन. हाँ रोनित बोलो. सर बाय टू गेट वन पर अभी बंडलिंग में आएगा. हाँ बाय टू गेट वन भी है, लेकिन वहां पर बंडलिंग के साथ डिस्काउंटिंग भी है. डिस्काउंटिंग भी हो रहा है, बट हाँ बाय टू गेट वन भी आएगा. कंजम्पशन बढ़ा रहे हो ना तुम? कंजम्पशन बढ़ा रहे हो ना? यस सर. एक ही कंज्यूमर को अपग्रेड कर रहे हो. तो तुम बोल रहे हो कि एक प्रोडक्ट खरीदोगे तो एक प्रोडक्ट का प्राइस लेंगे, लेकिन अगर दो प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो तीन प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो दो प्रोडक्ट का प्राइस लेंगे. बाय टू गेट वन वही है ना? तीन प्रोडक्ट ले रहे हो, एक दो का ही हम प्राइस ले रहे हैं. बेसिकली आई एम इंक्रीजिंग द कंजम्पशन. जो महाश्वेता शारदा वगैरह बात कर रही है. सो बाय टू गेट वन इज आल्सो. Okay, 12:47. I wanted to cover adaptation. Yes, no. Okay. प्यार में खामोशी का मतलब हाँ होता है, तो मैं मान लेता हूँ कि पढ़ना ही है तुमको क्लास. Okay. Fine. We will not continue. Don't worry. Next class will start. I hope I will be able to cover adaptation. Actually शुरू कर देना चाहता हूँ, तो ठीक है. What I wanted to tell you is, I'll post a case in Google Classroom. Along with that, I'll also post questions to that case. वो टाइम पास वाला केस नहीं है, एक पन्ने का और कि क्लास में पढ़ते वक्त ही देख लेंगे और उसी वक्त कुछ भी ज्ञान फेल लेंगे, ऐसा नहीं होगा. पढ़ के आना है, उसके साथ क्वेश्चंस होंगे, ग्रुप्स बने हुए हैं, सबमिट करेंगे. ठीक है? अगर पढ़ के नहीं आएंगे तो कुछ नहीं जमेगा. पेन पेपर कैलकुलेटर लेके बैठेंगे. प्राइसिंग का केस है, मैथमेटिक्स भी करनी पड़ेगी. कुछ नहीं चमकेगा अगर पढ़ के नहीं आएंगे. ठीक है? 10-12 पन्ने का केस है, बिल्कुल डीप डेप्थ में जाके समझ के आए. इज दैट ओके? क्योंकि मैं ऐसे ही केस, तो ये केस में सिर्फ एक एग्जांपल के लिए कराता हूँ क्लास में कि तुमको आइडिया हो जाए किस लेवल का केस होता है. क्योंकि जब मैं कराऊंगा केस, असाइनमेंट, इवैल्यूएशन जब कराऊंगा, ठीक है, तो फिर वो इसी लेवल का ही केस हो. इज दैट ओके? इज दैट ओके? और अगर नहीं पढ़ के आए, वैसे भी मैं पूछूंगा, नंबर काट लूंगा, वो तो रही मेरे पास. Any other question? Otherwise, you call it. Fine. Thank you so much for a wonderful session. See you next Friday.